Hi, I'm Dr. Safina Naz. I'm a clinical and a child psychologist and clinical director of Hear and Heal Mental Health and Wellness Clinic and director of SAMS International, who is a study abroad education. We help students travel abroad for higher education, connected about 900 plus universities in 28 different countries. And I have got an experience of close to a decade now, and alhamdulillah I have traveled more than 26 plus countries alone, solo, making sure that I'm giving whatever the best that I could give it. And my purpose in my life is to make sure that I'm empowering women, especially in our community, as much as I can, and to build the gems in our community who actually stands and contribute to the society and add value to our country. So this is what is my focus, and this is what I'm looking forward to do it. आज जो कॉलेज आए आप जो भी वातावरण है यहाँ के मैनेजमेंट के लिए और उनके बारे में क्या कहें? Alhamdulillah, management has been very helpful and they organized whatever they have to organize today, and I welcome and encourage management to do such more activities, because giving the different things to the children will add lot of a value, right? And when we do that, they will start understanding and they start embracing to it and they start performing better. So already they are doing an amazing job, and with this, all the very best to the college. And anytime you require any of my support, I'm always there. Please reach out to me for any of such help. जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता स्टूडेंट्स को तो कोई गलत कदम भी उठा देते हैं स्टूडेंट्स, Absolutely. सुसाइड तक भी जा सकते हैं। Absolutely. तो इस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं? So पहली बात, ये सवाल आपके यहाँ पे ना दो सवाल हैं. एक सवाल है अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आए तो क्या करना. दूसरा, इसकी वजह से स्टूडेंट्स सुसाइडल थॉट्स वगैरह जा रही. इसके लिए रीज़न सबसे ज़्यादा क्या है? इनको प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, और जो भी एनवायरनमेंट का प्रेशर रहता है. फर्स्ट स्टॉप गिविंग दिस प्रेशर. Instead of stopping the children, stop the parents for not giving them an academic pressure. And when you stop this, the students will not have any pressure and they will not take any wrong steps. तो यही मैसेज है आपका स्टूडेंट्स? Absolutely. खास तौर बच्चों के लिए से ज़्यादा मैं पेरेंट्स के लिए ये मैसेज देती हूँ कि stop pressurizing them for anything and everything. It's okay, your child is doing good. Start acknowledging so that they will start performing better and they become much better. अब खास तौर पर यूसी और डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए मसला रहता है कि एक तरफ उनकी पढ़ाई रहती, करियर रहता, तो दूसरी तरफ शादी का भी मसला रहता. तो ये कैसे हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है. आज के दौर में बेसिक एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपका इंटेंशन है काम ना भेजने के लिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन एटलीस्ट उनके हाथ में एक हुनर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज एक घर में एजुकेशन इज़ लाइक बिल्डिंग द एंटायर होम. The girl is educated, she is encouraging the rest of the family members to get educated. So that means we are becoming literate. We are not left behind in this political world. Thank you. शहर टुमकुर में ग्लोबल शाहीन कॉलेज की पहली अलुमनी मीट का शानदार मंजर. थोड़े से अरसे में ग्लोबल शाहीन कॉलेज का कमाल. ग्लोबल शाहीन कॉलेज ने मुल्क और मिल्लत को दिए 100 से ज़ायद डॉक्टर्स और कई 100 इंजीनियर्स. जी हां दोस्तों, अफजल शरीफ की लीडरशिप में टुमकुर शहर में ग्लोबल शाहीन तालीमी इदारे ने अपनी अनथक मेहनत, अपनी अनथक कोशिश से समाज में, माशरे में खुश आइन तब्दीली का जरिया बन रही है. वो तब्दीली ये है कि ग्लोबल शाहीन कॉलेज से फारिग होने वाली तालिबात डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन रही हैं. साल 2018 में शहर टुमकुर में अफजल शरीफ की क़यादत में ग्लोबल शाहीन तालीमी इदारा, जो बीदर के शाहीन तालीमी इदारे की रहनुमाई में कायम हुआ है, एक के बाद एक तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. तो दोस्तों, टुमकुर के अफजल शरीफ ने
वो शीशा तलाश किया है जिससे कौम और मिल्लत के मसाइल हल हो रहे हैं। एजुकेशन आम हो रही है और ख़ास तौर पर लड़कियां डॉक्टर और इंजीनियर बन रही हैं। अफजल शरीफ ने मजबूत व मुसम्मम इरादे के साथ तुमकुर शहर में लड़कियों के लिए पीयूसी साइंस कॉमर्स कॉलेज का आगाज किया। अब यहाँ डिग्री तक की तालीम है। कई मुश्किलें रुकावटें आईं लेकिन तमाम का सामना किया। शाहीन परिंदे की तरह शाहीन कॉलेज की परवाज भी जारी रही। अब यहाँ के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और लड़कियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 24 दिसंबर 2024 बरोज मंगल ग्लोबल शाहीन कॉलेज की पहली एलुमनी मीट बड़े पैमाने पर मुनक़द हुई। जी हां, पीयूसी साइंस से फारिग होने वाली तकरीबन 100 ओल्ड स्टूडेंट्स ने इस एलुमनी मीट में हिस्सा लिया। इस मौके पर मस्जिद यासीन के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद सलमान कासमी ने दिलों को झंझोड़ने वाली तकरीर पेश की और कहा कि अल्लाह ताला के नाम के बगैर, अल्लाह ताला की पहचान के बगैर तालीम हासिल करना गोया अपनी मेहनत को, अपनी तरक्की को ज़ाया करना है। ऐसी तालीम दुनिया और आखिरत में बर्बादी का सबब बन सकती है। मौलाना ने खुशी का इजहार किया कि ग्लोबल शाहीन इदारे में दीनी माहौल में स्टूडेंट्स, खास तौर पर लड़कियों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सफीना नाज ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए स्टूडेंट्स को इम्तिहानात की तैयारी, करियर की प्लानिंग, इस तरह काफ़ी कीमती बातें पेश की। एक जानिब कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट्स तो दूसरी तरफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स ने मिल बैठकर वक्त गुजारा। पुरानी सहेलियों ने एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को मिलकर खुशी का इजहार किया। इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए दोपहर के खाने का, ज़ोहराने का बेहतरीन नज़्म किया गया था। सिर्फ दावत ताम ही नहीं, स्पोर्ट्स गेम्स के मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया। इस तरह पूरी हंसी खुशी के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इन तमाम ओल्ड स्टूडेंट्स ने अपनी कॉलेज में वक्त गुजारा और ये बात कही कि ग्लोबल शाहीन कॉलेज में स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह नहीं बल्कि बेटियों की तरह तरबियत फराहम की जाती है। चेयरमैन साहब और उनकी अहलिया और यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स हर स्टूडेंट्स को खुसूसी तवज्जो देते हैं, पढ़ाई के लिए खूब एनकरेज करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत व हौसला फराहम करते हैं। अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, बहुत रोशन है मुस्तकबिल हमारा, बहुत रोशन है मुस्तकबिल हमारा। तो दोस्तों, ग्लोबल शाहीन कॉलेज नई नस्ल को रोशन मुस्तकबिल फराहम करने की जानिब आगे बढ़ रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।